لکی ڈیر آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس وقت ہم میو ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی بیٹی میرے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے ان کے لیے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بیوی کی ٹینشن لے کر ان کی دماغ کی نس پھٹ چکی ہے۔ امداد کا سارا پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا تھا اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اکاؤنٹ میرے والد کے گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ السلام علیکم، 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان۔ ناظرین، پاکستان سٹیج انڈسٹری کا ایک بڑا نام، ایک بڑا فنکار لکی ڈیر۔ لکی ڈیر آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس وقت ہم میو ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی بیٹی میرے ساتھ موجود ہے۔ لکی ڈیر وہ انسان ہے جن کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں آتی تھی، لیکن آج ان کی فیملی جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے ان کے لیے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لکی ڈیر کی اس ٹائم ڈیوریشن میں عروج سے زوال تک میں بہت ساری چیزیں آئیں۔ ان کی ایریا منظر عام پر آئی، انہوں نے لوگوں سے امداد لی، لوگوں نے دل کھول کے امداد کی کہ پاکستان کا ایک فنکار ہے۔ اس کے بعد وہ امداد کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں، کبھی کوئی گاڑیاں لے رہا ہے تو کبھی کوئی اپنے طریقے سے کس طرح عیاشی کر رہا ہے۔ آج لکی ڈیر ایک دفعہ پھر لوگوں کی امداد کا اور دعاؤں کا منتظر ہے، یعنی کہ آج یہ لوگ پھر سرکاری ہاسپٹل میں دھکے کھا رہے ہیں اور لکی ڈیر کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ اس کا علاج جو ہے اب ممکن نہیں ہے۔ باقی کیا معاملات، ان کے نجی معاملات کیا چل رہے ہیں، ان کی اہلیہ سونیا جو کہ منظر عام پہ آئی تھی، جنہوں نے لوگوں سے بڑی امداد اکٹھی کی تھی، وہ آج یہاں پہ ہمیں نہیں نظر آئی۔ ان کی بیٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، مزید جانتے ہیں کہ سونیا کدھر گئی۔ پتہ نہیں کہاں پہ گئی ہے وہ۔ اتنی امداد ہوئی تھی نا، دیکھیں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ امداد کے منتظر بیٹھے ہیں، تو اتنے پیسے لوگوں نے اتنی مدد کی تھی، اتنی ہیلپ کی تھی، وہ سارا کچھ کہاں گیا؟ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امداد کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اپنے والد کی دعا کے لیے بیٹھے۔ ہمیں کوئی 10 روپے بھی دینا ہم نہیں لیں گے۔ وہ سونیا تھی جنہوں نے لے لے تھے، وہ ہمیں نہیں پتا کہاں پہ گئی ہے، کیوں گئی ہے۔ جب میرے والد کو امداد ہوئی تھی 2-3 ماہ رہی ہے، اس کے بعد ہمارے والد کبھی میرے پاس کبھی میرے بھائی کے پاس۔ آپ کے والد صاحب؟ جی 5 ماہ میرے پاس رہے ہیں، 5 ماہ کے بعد ادھر آئے ہیں، تو آج ان کی یہ 25 دن بعد یہ حالت ہوگی۔ ان کو ہوا کیا ہے؟ اب کی دفعہ ڈاکٹرز، پہلے بھی ان کی حالت تشویشناک تھی، لیکن اب اس طرح ڈاکٹرز نے پہلے کبھی جواب نہیں دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ ان کی بیوی کی ٹینشن لے کر ان کی دماغ کی نس پھٹ چکی ہے، دماغ ان کا ڈیمیج ہو چکا ہے۔ بیوی کی کیا ٹینشن؟ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی اپنے سکھ کے لیے، لیکن جب وہ چھوڑ کے چلے گی، انہوں نے دیکھا نہیں، پوچھا نہیں، تو ٹینشن تو آتی ہے نا جیون ساتھی کی۔ کبھی لکی ڈیر صاحب کی امداد کے پیسوں سے گاڑیاں لی جا رہی ہیں، کبھی پروڈکشن کا کام شروع کیا جا رہا ہے، وہ گاڑیاں کدھر گئی، وہ پیسہ کدھر گیا؟ دیکھیں لوگوں نے یہاں تک آپ لوگوں کی امداد کی تھی کہ آپ لوگوں کا گھر رینوویٹ کروا کے دیا گیا تھا، یہ سوچ کے کہ پاکستان کا ایک بڑا فنکار ہے، امداد کا منتظر ہے۔ جنہوں نے گھر تیار کر کے دیا تھا ان کی بہت مہربانی، لیکن میرے والد کو تو وہاں پہ رہنا نصیب ہی نہیں ہو رہا، میرے والد تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ کل آئی تھی ادھر، میرا بھائی نہیں تھا ملنے دے رہا، جب میرے والد مبار تھے میں نے ان کو کال کی کہ آپ بچے ہیں اور آپ آئیں، وہ میری کہنے پہ نہیں آئی۔ کل وہ آئی ہیں تو آتے ساتھ میڈیا والا بندہ لے کر آئی ہیں، انٹرویو چوری دے رہی تھی، اوپر سے ہم پہ الزام لگا گئی ہے، دھمکیاں دے گئی ہیں، مجھے بھی دھمکی دی ہے انہوں نے کہ تم نے آگے سے انٹرویو دیا تو تمہارا حشر غلط ہوگا، تو اس لیے میں انٹرویو۔ طاقتور ہو چکی ہے سونیا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ہمارے والد ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امداد کا سارا پیسہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا تھا اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اکاؤنٹ میرے والد کے گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اور وہ گاڑیاں؟ گاڑی ایک ہی دی تھی انہوں نے، تو وہ ہم نے واپس کر دی۔ کس نے دی تھی؟ وہ سہیل اشرف صاحب نے ایک ہی دی تھی تو ہم نے واپس کر دی، تو اس کے انہوں نے ہمیں 15 لاکھ واپس دیے تھے، تو وہ میں نے اپنے والد کے
फालिज के अटैक है, प्राइवेट इलाज करवाया था कबाल हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरे दवाइयों के सिलसिले में 15 लाख रुपए आपको उन गाड़ियों का मिला था जो कि इलाज में लग गया। अब अब आपके वालिद साहब का कौन इलाज करवा रहा है, कौन मदद कर रहा है आप लोगों की? मैं खुद ही हम कर रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। मेरे पास जो भी मेहनत मजदूरी जो भी थे ना, मैं वो साथ ही लेकर आई हूँ। चाहे मेरे वालिद के चाहे मेरे, मैं वो साथ लेकर वही मैं लगा रही हूँ। और हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं उस दिन भी वहाँ के आगे यही हाथ जोड़ के कहा था कि अगर मेरे वालिद से या हमसे कोई गलती हुई है ना, तो हमारे वालिद को माफ़ कर दें, दुआएं करें। आपके वालिद साहब ने कहा था मेरी बेटी जो है वो, मेरी बीवी ठीक है, मेरी बेटी ठीक नहीं है, कि मेरी बेटी जो है पैसों के मामलात थे और उनमें वो कह रहे थे नहीं नहीं सोनिया ठीक है। तो वो क्या मामला था? वो बीवी थी ना, जाहिर सी बात है, मेरी शादी हुई है, मैं कौन सा पास में बीवी है, फिर जाहिर सी जो कुछ मर्जी करवा लेती। लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कभी भी गलत नहीं कहा। अगर मैं गलत होती तो मेरे वालिद मेरे पास जाके रहते। मेरे वालिद की कोई भी गलती नहीं है। इतना तो माँ बाप बेटियों तक के गिला कर ही लेते हैं, वालदैन से कोई गिले नहीं? नहीं तो नाले मेरे वालिद मेरे लिए बहुत लकी हैं, उन्होंने कभी नहीं मेरे साथ की। अच्छा, अब कोई लोग आए हैं उनके साथी फनकारों में से, कोई पूछने आया है, कोई हाल अहवाल पूछने, या किसी ने कोई तिमारदारी की हो? नहीं, अभी तो किसी ने भी नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि जो पहले इनके बातें थी इनकी बीवी ने, कि उसकी वजह से कुछ तलक ख़राब हुए हैं। तो मेरी आज भी उनके ख्वाहिश यही दरख्वास्त है कि वो किसी भी तरीके से मेरे अब्बू के लिए दुआ करें और दिल में जो भी गिला शिकवा है वो दूर कर दें। सोनिया में से कितने बच्चे हैं लकी साहब के? 2 हैं, बेटी और बेटा। बेटी और बेटा, वो साथ लेके गई? साथ ही लेकर गई है, कल साल लेकर आई थी। ऊपर से हमें ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे शोहर को ये कह रही है कि मैंने तुम्हारी बीवी को इस तरह करना है। देखें कि आप लोग को भी नज़र आ रहा है, आपकी भी माएँ बहनें घर में हैं, तो मुझ में और उसमें फ़र्क देखें कितना है। इस टाइम किधर है वो? नहीं, हमें नहीं, सच में हमें नहीं पता वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। जब लास्ट टाइम गई है तो क्या क्या चीजें घर से लेके गई है? ये मुझसे बेहतर इन घर वालों को बता, कपड़े ले गई थी। नाराज होके गई थी? कोई लड़ाई हुई थी? हाँ, वालिद में और उसमें कोई झगड़ा हुआ था। ये बता रहे हैं कि मेरे भाई के साथ भी हुआ था, तो उसकी वजह से वो किसी के घर में रहने लग गई। मैं फिर वालिद को अपने साथ ले गई। किसी के घर में? हाँ, किसी के घर में रहने लगी। मैं वालिद को अपने साथ ले गई। वहाँ पे माशाल्लाह बेहतर रहे हैं, बहुत से बेहतर रहे हैं। सोनिया की एक टिकटॉक देखी है मैंने जिसमें लकी डेर साथ है, कोई आज से 10-15 दिन पुरानी होगी। पुरानी थी, अभी तो उन्होंने वो साथ बैठना पसंद नहीं करती, तो टिकटॉक अब कहाँ पे उन्होंने साथ बनानी है। वो तो टिकटॉक स्टार है ना आजकल। जो कोई बात नहीं, ये फनकार की उसने इज्जत नहीं रहने दी, तो उसकी कहाँ पे रहनी। आप लोगों की सुलह भी हो गई थी? मैंने उनका बहुत इज्जत दी है, बहुत उनका अहमियत दी है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं माना बेटी। उन्होंने मुझ पे बदनामियाँ लगाई हैं, सारा कुछ किया। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। इस सारे मामले में पीर सुहेल साहब आए, वो सोनिया कहती है कि वो मेरे वालिद की जगह है, और पीर सुहेल साहब का इसमें क्या किरदार है? देखेंगे, हमें नहीं पता क्या है, मदद करके गए थे। वालिद का आना जाना काफ़ी था, इनका भी। मैं भी 1-2 दफ़ा गई हूँ, मेरी उन्होंने सुलह करवाई है। तो वो सुलह नहीं थी, वो मेरे फादर के लिए कोई परेशानी थी। अब कहाँ पे ऐसे अशरफ का, अब मेरे वालिद जो आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ, अब क्यों नहीं आ रहे? उस टाइम तो आ गए थे, अब क्यों नहीं आ रहे? अब भी आन के देखें ना। बिल्कुल, मुश्किल की इस घड़ी में साथ देना चाहिए। मुश्किल की घड़ी में दुआएं आन के कर देना तो वो भी बहुत होती है। पैसों की तो दूर की बात है, मैंने तो ना पहले पैसे बात की थी, ना मैं अब पैसों की बात करती हूँ। अल्लाह का शुक्र, आप जो हक लाल। ये सोनिया कहाँ की थी? स्टेज से इसका ताल्लुक था? कहाँ से ताल्लुक था? कहाँ से लकी साहब ने इससे शादी कर ली? कैसे इनके ताल्लुकात बने? लव मैरिज थी? ये लव मैरिज थी शायद, हमें नहीं पता। कहाँ की है, कोई अता पता? नहीं, ये कह रहे थे दारे थी यतीम खाने की। अगर यतीम खाने की होती तो आज हमें ना यतीम करके जाती। सास होता है माँ बाप का, कि मैं माँ बाप से बिछड़ी हूँ तो उनका ना मैं माँ बाप दूर करूँ। इस टाइम कौन कौन खिदमत कर रहा है बाप की? मैं हूँ, मेरा भाई है और मेरा शौहर है, तो उनकी बहू है। घर इस टाइम किसके पास है? घर इनके पास भाभी आती है सुबह, वो शाम को चले जाती है। तो हम इधर ही रहते हैं 3, मेरा शौहर में है और मेरे भाई। पहली शादी में से कितने बच्चे हैं? 2 हैं आप 2 बहन भाई? जी।
लकी डेर की बेटी राबिया हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा है कि हम सोनिया की तरह लोगों से ये नहीं कहते कि हमें इमदाद दी जाए, बल्कि इनके वालिद साहब के लिए दुआ की जाए। और सोशल मीडिया पे बड़ी सारी चीज़ें चल रही थी, सोनिया के भी इंटरव्यूज़ आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। राबिया ने बताया कि वो काफ़ी अरसे से इनको छोड़ के जा चुकी है। बाकी लकी साहब की अगर तबीयत की बात करें तो तबीयत जो है उनकी ताहाल जो है वो वैसे ही है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कि आप मेंटली तौर पे तैयार रहें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई लोगों से अपील है आपकी, या हुकूमत पंजाब से, या किसी से कोई अपील हो? हाँ, मेरी एक अपील है कि वो मनचंद स्टेडियमों पे है, उनके लिए ये है कि उन्होंने कॉल करके हर दफ़ा मेरे वालिद का पता लिया है, मेरे साथ बात करते रहें। उनकी बहुत मेहरबानी। मैं कहती हूँ कि जो जो मेरे वालिद के दोस्त हैं वो दुआएं करें। अगर अनजाने में हमसे या हमारे वालिद से कोई गलती हुई है तो उनको माफ़ी दी जाए, तो जो उनके सांस हैं वो सही हो जाए, मुश्किलें आसान उनकी हो जाएं, जो वो मुश्किल में आज 6 दिन हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मेरी यही ख्वाहिश है। और मैं ये नहीं कहती कि हमें मदद नहीं, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मेरा वालिद ही पैसा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हुकूमत के, मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम आपने बात सुनी थी, अब भी सुने कि हम में कितना फ़र्क उस औरत में, हम पे बदनामियाँ लगाई जा रही है। हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं, कुछ औरत को लगाम डाली जाए कि वो अपना मुँह बंद रखे।